الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، میرے ہم نشین بچے، اسلامی اخلاق کی محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم سب کشی نگر ضلع کے بیریا گاؤں میں دین کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو قبول فرمائے. جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ اس بستی میں یہ پہلا اجلاس ہے. اس سے پہلے کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی بڑا اجلاس نہیں ہوا تھا. آج یہ پہلا اجلاس ہے، اس لیے بیریا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دے دوں مولانا شمشاد صاحب؟ ایک شعر پہنچاتا ہوں بیریا کے نام سے کہ فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم آئے بیریا میں کہ فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم آئے بیریا میں. فضل خدا سے ہر دم ایسا موسم آئے بیریا میں. برسے رحمت رم جھم پھول کھلے بیریا میں کہ برسے رحمت رم جھم پھول کھلے بیریا میں. بہت بہت شکریہ دوستو. اب میں بالخصوص ان حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تک فیلڈ سے باہر ہیں، اجلاس سے باہر ہیں، اب آ جائیں اور اجلاس میں بیٹھ جائیں، کیونکہ بھوجپوری میں ایک کہاوت ہے کہ آسرا جھر گئل کھوروا بچ گئی. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ آسرا جو تھا وہ ختم ہو گیا اور جو لکڑی کا کھور ہے وہ بچا ہوا ہے. تو یہ کبھی نہ ٹوٹے گا اور نہ کبھی یہاں سے ہٹے گا انشاءاللہ. تو اس لیے اب آپ جو حضرات یہاں پر ہیں وہ دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ میں بھی زیادہ دیر تک بات نہیں کروں گا، 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اتنا یاد رکھیے کہ 10 منٹ سے آگے بات نہیں جائے گی. اب جب 10 منٹ کے بعد میں بولنا شروع کروں تو آپ اپنا
पर्चा भेजना शुरू कर दीजिएगा कि 10 के बजाय अब 20 मिनट के तरफ और 30 मिनट के तरफ जा रहे हैं। आइए सबसे पहले अपने मिजाज को बनाता हूँ, 2-3 अशार पहले नाते नबी के पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं कि नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है, मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। और दिल की गहराई से 2-3 अशार मदीना तक जाने को तैयार है। पहला शेर हाजिर करता हूं और इस नियत से पढ़ता हूं कि हर आदमी अपने इरादे को समेट ले कि इंशाअल्लाह हमें भी मदीना जाना है। कि मेरी हयात मुझसे कभी मुहे न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुहे न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे कभी मुहे न मोड़ना। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। अगर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। ऐसा होता नहीं है कि फूल से पत्थर टूट जाए, लेकिन नीचे का मिश्रा लगाऊंगा इंशाअल्लाह टूट जाएगा। कि गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। रिश्ता 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 रसूल पाक के सीरत से जोड़ना, रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना। पूरा मन में कहिए सुभान अल्लाह। कि देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ इंशाअल्लाह। कि देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ। बेटा 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 मेरे हुसैन से
رشتہ نہ توڑنا بیٹا میرے حسین سے رشتہ نہ توڑنا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے بہت اچھا سنا۔ دو تین اشعار میں بھی بھوجپوری کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہ سارے نبیان کا بول دیجئے سبحان اللہ، کہ سارے نبیان کا ایلن سرکار ہو، وہ جگ میں آہل بہار ہو، کہ سارے نبیان کا ایلن سرکار ہو، وہ جگ میں آہل بہار ہو، کہ عام نبی کا مقدر جگل با، دادا کا تو چہرہ کھلل با، کہ عام نبی کا مقدر جگل با، دادا کا تو چہرہ کھلل با، کہ گھر میں حورن کا، کہ گھر میں حورن کا لاگل قطار ہو، وہ جگ میں آہل بہار ہو، کہ گھر میں حورن کا لاگل قطار ہو، وہ جگ میں آہل بہار ہو۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ چہرہ با جیسن کسی پون میں موتی، ارے بولیے نا سبحان اللہ، کہ چہرہ با جیسن کسی پون میں موتی، اثر پہ با تاج جو کی پہنا کے ٹوپی، کہ چہرہ با جیسن کسی پون میں موتی، اثر پہ با تاج جو کی پہنا کے ٹوپی، آکے جھلنا آکے جھلنا آکے جھلنا جھولاوے مالار ہو، وہ جگ میں آہل بہار ہو، کہ آکے جھلنا جھولاوے مالار ہو، وہ جگ میں آہل بہار ہو۔ اور بھوجپوری کے مقطع کا شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ٹوٹی چٹائی با ان کر بچھونا، کہ ٹوٹی چٹائی با ان کر بچھونا، چندوا بنل باتے ان کر کھلونا، کہ ٹوٹی چٹائی با ان کر بچھونا، کہ چندوا بنل باتے ان کر کھلونا، کہ سارا عالم، کہ سارا عالم، کہ سارا عالم با ان پر نثار ہو، وہ جگ میں آہل بہار ہو، کہ سارا عالم با ان پر نثار ہو، وہ جگ میں آہل بہار ہو۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ اچھا ایک بات کہیں منبع لوگ دو چار آدمی تب بڑھلے بڑھے لوگ تنکا آگے آگے چلا آو لوگ ماشاءاللہ۔ دیکھیے دین نام ہے ماننے کا بھی جاننے کا بھی، علماء جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ جان گئے، اور جاننے کے بعد جب آپ مان گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا آنا بالکل طے ہو گیا اور آنا آپ کا مقبول ہو گیا۔ اس لیے اب آپ میرے دوستو اب یہاں آپ بات کو ماننا جان گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو بلایا گیا، آپ آ گئے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جب بچھایا تو پہاڑ سے اس کو لگایا۔ فرشتوں نے دیکھا تو پوچھا اے اللہ آخر اس زمین کو پہاڑ سے کیوں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے فرشتوں زمین سے پہاڑ کو اس لیے جوڑ دیا تاکہ زمین کے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔
अल्लाह ताला ने कहा कि अब इस जमीन से ज्यादा ताकतवर मैंने पहाड़ को बनाया। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मैंने लोहा के अंदर रखा। जब लोहा पहाड़ में सुराख करता है तो पहाड़ टूटकर गिरना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या लोहा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, लोहा से ज्यादा ताकतवर मैंने आग के अंदर रखा। जब आग में लोहा डाल दिया जाता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या आग से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, आग से ज्यादा ताकतवर मैंने पानी के अंदर रखा। जब पानी आग में डाल दिया जाता है तो आग का टीला दर टीला बुझना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, पानी से ज्यादा ताकतवर मैंने हवा के अंदर रखा। हवा का झोंका चलता है, पानी का रेला भजाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या हवा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने ऐलान किया, ए मेरे फरिश्तों, सारी ताकतें एक तरफ और इंसान की ताकत एक तरफ। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा नक्शा में पैदा किया। जब इंसान सबसे बेहतर है तो उसको सबसे बेहतर बनना पड़ेगा। जब इंसान की शक्ल सबसे अच्छी है तो उसको अच्छी शक्ल में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जब इंसान सबसे बेहतर मखलूक है तो उस बेहतर मखलूक को एक एक नमूना कार बन करके आना पड़ेगा। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम इंसान की तरह तो नजर आते हैं लेकिन आमाल के एतबार से इंसान नहीं है। आमाल के एतबार से इंसानियत में हम नहीं है। इंसान नजर आते जरूर है मगर हमारा कल्चर नबी के कल्चर से नहीं मिलता। हमारी सोसाइटी नबी की सोसाइटी से नहीं मिलती। हमारा परवान नबी के परवान से नहीं मिलता। हमारी सुन्नत जो तरीका है नबी के तरीके से नहीं मिलता। पता ये चला कि इंसान तो सब है, अमल के एतबार से हर इंसान का कारनामा अलग नजर आता है। आपको मिसाल से समझाता हूँ। एक अल्लाह का वली पान की दुकान पे पहुंचे और पहुंचने के बाद पान वाले से कहा कि जरा एक पान बनाकर खिला दो। पान वाले ने पान बना करके अल्लाह के वली को दे दिया। अल्लाह के वली ने 1 रुपए का सिक्का दिया, पान वाले को दे दिया। पान वाले ने कहा, बाबा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अल्लाह के वली थे, आपने दुआ दी, ए अल्लाह इसको इंसान बना दे। फिर कल फिर उसी दुकान पर गए और फिर कहा एक पान बना। फिर पान बन जाता है। पान वाले ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। अब इनकार करते ही अल्लाह के वली ने फिर दुआ दे दी, अल्लाह तुम्हें इंसान बना दे। जब ये दुआ हुई वो सुनता रहा। तीसरे दिन भी अल्लाह के वली उसी पान की दुकान पे पहुंचे और फिर आपने कहा एक पान बना करके दे दो। एक पान बन जाता है। अल्लाह के वली ने एक सिक्का दिया, पान वाले ने सिक्का वापस कर दिया। कहा, ए अल्लाह के वली आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के वली ने कहा, अल्लाह तुम्हें इंसान बना दे। पान वाले को गुस्सा आया, कहा कि आपको मैं इंसान दिखाई नहीं देता हूं? परसों भी इंसान बना दे, कल भी इंसान बना दे, आज भी इंसान बना दे। इंसान नहीं तो जानवर दिखाई देता हो। एक ही दुआ को बार बार आप कह रहे हैं, अल्लाह इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। इंसान नहीं हो तो जानवर बन के बैठा हो। अल्लाह के वली समझ गए, अपने सर की टोपी उतारी और उस पान वाले के सर पर रख दी। जैसे पान वाले के सर पे टोपी गई, परेशानी पर परेशानी बढ़ती गई। सर से पांव तक पसीना बढ़ता गया। कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर बेचैनी, कभी उधर बेचैनी। अल्लाह के वली ने फौरन सर की टोपी खींची, अपने सर पर डाली। पूछा कि पान वाले क्या हुआ? कहा, ये अल्लाह के वली जो हुआ वो तो मैं ही समझ रहा हूँ। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जितने लोग आज दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, इंसान तो नजर आ रहे हैं मगर उस इंसान का करनामा इंसान की तरह नहीं है। मैंने देखा कि किसी इंसान की शक्ल कुत्ते से मिल रही है, किसी इंसान की शक्ल सुअर से मिल रही है, किसी इंसान की शक्ल बंदर से मिल रही है। इसी में मैं परेशान होता रहा कि अल्लाह ये क्या मंजर है। सब तो इंसान है मगर शक्ल क्यों बदलती नजर आ रही है।
पता चला मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि हमने इंसान को इंसान की तरह चलना नहीं सीखा, हमने इंसान को इंसान जैसा रहना नहीं सीखा, हमने इंसान को इंसान की शक्ल की तरह हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमें तो हक ये था कि हमारी सूरत नबी की सूरत से मिलती, हमारी सीरत नबी की सीरत से मिलती, हमारा कल्चर नबी के कल्चर से मिलता। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने कारोबार में आगे जा रहे हैं, बिजनेस में आगे जा रहे हैं, तिजारत में आगे जा रहे हैं, कारोबार में आगे जा रहे हैं, लेन देन में आगे जा रहे हैं, खेती बाड़ी में आगे जा रहे हैं, घर के कारोबार में आगे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझा कि कुरान में आगे है या नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत में आगे है या नहीं, अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलते हैं या नहीं, नबी की सुन्नत हमारे दिल में उतरती है या नहीं, इसके बारे में हमें फिक्र नहीं है। लेकिन सदर आलम नक्शा खींचा कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी पहचान कहां से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी पहचान कहां से लाओगे। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज रब चाही जिंदगी हमने छोड़ दी, मन चाही जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। अल्लाह कहता है रब चाही, हम कहते हैं मन चाही। जब मन चाही जिंदगी आई, अल्लाह के अहकाम टूटे, नबी की शरीयत छूटी, और यही वजह है घर घर में बाप को बेटे से नफरत है, माँ को बेटी से बगावत है, भाई को भाई से नहीं पड़ता। आज एक दूसरे से नफरत पर नफरत, नफरत पर नफरत करते नजर आ रहे हैं। जरा सोचो तो सही, कल अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी, हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया, क्या जवाब दोगे जब अल्लाह के रसूल के सामना होगा और हम आगे बढ़ करके सर को झुकाए होंगे, जवाब नहीं मिलेगा। और मेरे दोस्तों याद रखना, आज तो दुनिया में जिंदा है तो न जाने कितने अरमान हैं, लेकिन वो तारीख याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा, अल्लाह अपने पास दो आदमी को बुलाएगा और कहेगा ए मेरा बंदा, आज मेरे मीज़ान में तेरे आमाल देखे गए तो 99 पाप करके मेरे दरबार में आए हो। कितने भाई? 99 पाप करके आए हो, एक नेकी है एक पुण्य है। दूसरे से कहेगा ए मेरा बंदा, तुम मेरे पास आए हो, 99 नेकियां हैं, एक पाप है। दोनों को अल्लाह कहेगा कि तुम दोनों जहन्नमी हो, जहन्नम में चले जाओ, इसलिए कि एक के पास एक नेकी कम है और एक के पास 99 पाप है, 99 नेकियां कम है। अब दोनों के दोनों का मसला हल नहीं होगा, अल्लाह का फैसला होगा, जहन्नमी हो जहन्नम में चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, उसमें से एक अल्लाह का बंदा जिसके पास 99 पाप है, एक नेकी है, वो अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह मेरे पास तो 99 पाप है, किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो पाप करते करते तेरे दरबार में हाजिर हुआ हो। ए अल्लाह, इस तेरा बंदा जिसके पास 99 पुण्य है, 99 नेकियां हैं, ए अल्लाह मैं अपनी एक नेकी इसको दे रहा हूँ, कम से कम इसको तो जन्नत में डाल दे अल्लाह, इसलिए कि 99 अमल करके आया है। ए अल्लाह मेरी नेकी जब उसको ट्रांसफर हो जाएगी, ए अल्लाह 100 नेकियां हो जाएंगी, कम से कम उसको तो जन्नत में डाल दे परवरदिगार। अल्लाह की रहमत जोश मारेगी, अल्लाह कहेगा ए मेरा बंदा, तू एक नेकी देकर 100 कर सकता है तो वहदहू ला शरीक का खजाना क्या कम है। चलो 99 पाप को 99 अमाल से बदलता हूँ, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा। कि दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से,
बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम आगे बढ़े कुरान को लेकर, हम आगे बढ़े हदीस को लेकर, हम आगे बढ़े उलमा को लेकर, हम आगे बढ़े मुफ्तियान इकराम को लेकर, हम आगे बढ़े काजियों को लेकर। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी का फरमान गलत ना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि यही तो मेरे वारिस हैं। आज उलमा से रिश्ता कट रहा है तो हर चीज छूट रही है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा से रिश्ता होता, हमारे बच्चे तालीम से आरास्ता होते। आज हमारे बच्चे जब कुरान की तालीम हासिल करते, आज हमारी इज्जत होती, माँ के कदमों में जन्नत पाते। लेकिन वो बच्चे को तालीम नहीं मिली, उस बच्चे को हमने कुरान नहीं सिखाया। आपको बताना चाहता हूँ 1,24,000 नबी दुनिया में तशरीफ लाए और तमाम नबियों को अल्लाह ने उस वक्त तक नबी नहीं बनाया जब तक कि वो नबी सीखने वाला न बना। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला नबी, सबसे पहला दुल्हा, सबसे पहला इंसान। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले सिखाया, बाद में नबी बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने इद्रीस को, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को पहले सिखलाया, बाद में नबी बनाया। नूह अलैहिस्सलाम को पहले सिखलाया गया, बाद में नबी बनाया गया। अल्लाह ताला ने हर चीज का इंतखाब किया, चुन लो, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। हमारे नबी का नंबर आया। बड़ी बड़ी किताबों को आपने देखा, तौरेत नाजिल हुई, जबूर नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, कुरान नाजिल हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने हर का अलग अलग हिसाब रखा। जब तौरेत उतारी तो तौरेत को मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। कहा ये मूसा चलो जरा कोहे तूर पर जाओगे, तौरेत वहां जाएगी। जबूर को उतारा, कहा ए दाऊद तुम फला इबादत खाने में चलो, वहां जाओगे तो जबूर वहां मिल जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा जब इंजील को उतारना था, ए ईसा फला इबादत खाने में चलो, इंजील वहां मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब कुरान का नंबर आया, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ए मेरे हबीब मक्का में जाओ कुरान वहां जाएगा, मदीना में जाओ कुरान वहां जाएगा, मुज़दलिफा में जाओ कुरान वहां जाएगा, आप बदर में जाओ कुरान वहां जाएगा। बल्कि अल्लाह ने ये ऐलान किया जहां जहां मेरा नबी जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। मक्का में मेरा नबी होगा, कुरान मक्का में होगा। मदीना में मेरा नबी जाएगा, कुरान मदीना में जाएगा। मेरा नबी मुज़दलिफा में जाएगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। और ये अल्लाह ताला ने इंतखाब किया। इसीलिए सदर आलम नक्शा खींचा कि घर घर पहुंचे कुरान, कि घर घर पहुंचे कुरान। यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान। यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले आज के इजलास में अहद करो, 2 रोटी कम खाओगे लेकिन अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओगे इंशाअल्लाह। आज ये कुरान हमारे सीने में है, हम जानते हैं हलाल क्या है, हराम क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, छोटों पर शफकत क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। वो तो शैतान लग जाता है कि कहता है जितने पढ़नियार उतने बुराई। ये कौन कहता है? ये शैतान कहता है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरा ईमान कहता है कि अगर दिल में हिफ्ज़ है, अल्लाह का कुरान है, अपनी माँ को गाली देते आपने नहीं सुना होगा, अपनी माँ को लात मारते आपने नहीं देखा होगा। कोई हाफिज़ कुरान
क्योंकि वो जानता है कि ये कुरान ऐलान करता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि माँ बाप को उफ तक मत कहो। ये कुरान कहता है और सीखने वाला आलिम दीन सीख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ का इतना रुतबा दिया कि अपनी माँ को उफ मत कहो। ये सबक कहाँ से मिलेगा? ये कुरान से मिलेगा। ये सबक कहाँ से मिलेगा? हदीस से मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सदर आलम एक आवाज आप तक लगाता है कि टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा, महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली, माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। जहाँ है वहीं रहने दो, अच्छा तो चल ही रहा है। छेड़छाड़ करने से दिक्कत हो जाती है। जहाँ है बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आपको ज्यादा नहीं छेड़ूंगा। जहाँ है वहाँ है, बहुत अच्छा चल रहा है। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ की अजमत जो ना समझे।